اور اب خبریں تفصیل سے۔ جموں اور کشمیر میں پھر کووڈ سے 3 اموات ہوئی ہیں۔ کل سے آج تک جموں میں کووڈ سے متاثر ایک شخص کی فوت ہو گیا۔ ادھر کشمیر میں کووڈ متاثرہ 2 افراد کی موت کی توثیق کی گئی۔ جموں کشمیر میں 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 573 نئے پازیٹیو کیس سامنے آئے۔ کشمیر سے 451 نئے کیس سامنے آئے، جبکہ جموں ڈویژن میں 122 مزید کیسوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اسی بیچ کووڈ سے صحت یاب ہونے والے 189 مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ کشمیر میں 150 مریضوں کو اسپتال سے چھٹی ملی۔ ادھر جموں میں 39 مریض شفا یاب ہو گئے۔ جموں کشمیر میں کووڈ کے 3955 کیس ایکٹیو بتائے گئے ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کووڈ گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سرکاری افسروں کی ناک کے نیچے ضابطوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کووڈ سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کے تئیں انتظامیہ کے احکام کی دھڑلے سے خلاف ورزی کی گئی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے احکام میں صاف طور سے کہا ہے کہ 2 سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ منہ بولتی تصویریں ٹیولپ گارڈن کی ہیں۔ گارڈن کی گیٹ پر سینکڑوں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ لوگوں کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ سوشل ڈسٹنس کے اصول پوری طرح توڑ دیے گئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرکاری احکامات صرف جنازوں میں شرکت یا شادی بیاہ کی تقاریب کے لیے ہیں؟ آیا ان احکام کا نفاذ پوری طرح نہیں کیا جانا چاہیے؟ اگر کووڈ کے خطرات کے چلتے اسکول بند کیے جا رہے ہیں تو کسی باغ میں لوگوں کو بڑی تعداد میں جمع ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ٹیولپ فیسٹیول سرکاری تقریب نہیں ہے؟ ارباب مجاز کو ان تمام سوالات کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے آج رکن پارلیمان فاروق عبداللہ کا حال احوال جاننے کے لیے صبح سویرے اسکمز کا دورہ کیا۔ یاد رہے کہ فاروق عبداللہ کووڈ پازیٹیو ہونے کے بعد کل ہی اسکمز میں داخل کرائے گئے تھے۔ ایل جی کے طرف سے اس اقدام پر عمر عبداللہ نے اپنے پیغام میں اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میں نے اپنے والد کو شفٹ کرنے کی پیشکش پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اسکمز سری نگر کے ڈاکٹر اور دیگر عملہ سب سے بہترین ہیں۔ میرے والد کی بہترین طبی نگہداشت کی جا رہی ہے۔ ادھر ایل جی منوج سنہا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، ڈاکٹروں سے کہا کہ فاروق عبداللہ کو بہترین طبی خدمات مہیا کرائیں۔ ایل جی نے فاروق عبداللہ کی لمبی عمر اور اچھی صحت کی تمنا کی۔ ڈائریکٹر اسکمز ڈاکٹر اے جی آہنگر نے ایل جی کو فاروق عبداللہ کی صحت کے بارے میں جانکاری دی۔ اسی دوران نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈروں نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ملاقات کی اور فاروق عبداللہ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ کشمیر خطے میں پیر سے اسکول بند کر دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ کووڈ کیسوں کی بڑھتی تعداد کے مد نظر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ نرسری سے 9ویں جماعت تک کا کلاس ورک 2 ہفتوں کے لیے معطل رہے گا، جبکہ 10ویں سے 12ویں جماعت کا کلاس ورک 1 ہفتے کے لیے معطل کر دیا گیا۔ سری نگر میں آج ضلع انتظامیہ نے اس ضمن میں اعلانات کیے۔ لوگوں کو کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سرکاری فیصلے سے آگاہ کرانے کے لیے سنڈے مارکیٹ میں بھی ایسے اعلانات کیے گئے۔ یہاں لوگوں کا کافی رش دیکھا گیا۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹ فیاض احمد بابا نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایسی صورتحال پیدا کرنے سے گریز کریں جس سے دوبارہ لاک ڈاؤن لگانے کی نوبت آ جائے۔ کسی بھی پروگرام میں 200 سے زائد لوگوں کے جمع ہونے پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے پابندی عائد کر دی ہے۔ حال ہی میں اس کا دوسری بار یہ کووڈ نے وہی سر نکالا جو پہلے تھا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دن سے 550 کیسز ایک ہی دن میں آ گئے۔ لہذا ڈپٹی کمشنر سری نگر کے حکم کے مطابق ہمیں یہاں تعینات کیا گیا، پورا پولیس عملہ یہاں سری نگر میونسپل کارپوریشن یہاں۔ ہم لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ ایس او بی کا بالکل بھرپور خیال کریں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے۔ بہت سارے ہم نے ایسے لوگ بھی پائے ہیں جو ابھی بھی سدھر نہیں رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کو شاید یہ بھی پتہ ہے کہ شاید صحیح بات نہیں ہے کہ کووڈ کوئی وبا ہے کہ نہیں۔ ہم لوگوں سے یہی پیغام کرتے ہیں، یہی پیغام دیتے ہیں کہ جو یہ گھر سے نکلے اپنے ہاتھ میں سینیٹائزر رکھیے، اپنے خود ماسک پہنیے، دوسروں سے فاصلہ رکھیے۔ جہاں بھی آپ کو جانا ہے، جہاں بھی کسی دکان میں جانا ہے، کسی آفس میں جانا ہے، اسکول جانا ہے، خیال کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہی یہ لیفٹننٹ گورنر صاحب نے آرڈر نکالا کہ اپ ٹو 9th کلاسز جو ہے وہ بند رہیں گے۔ کیوں؟ بچے جو اسکول جن کو پچھلی دفعہ یہ آرڈر نکالا، بچے اسکول جا رہے ہیں۔ جہاں ہم نے ریپڈ ٹیسٹ یہاں
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे के मुताबिक हर स्कूल में, हर दफ्तर में रैपिड टेस्ट हो रहे हैं और आप देखिए यहाँ भी इस वक्त रैपिड टेस्ट हो रहा है। हम यही देखते हैं कि जब रैपिड टेस्ट हो के भी यहाँ ये कोविड पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हुए हैं, इसीलिए स्कूल को कुछ टाइम के लिए 2 वीक्स के लिए। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर पीर मंसूर हुसैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पुरानी हैसियत को बहाल करने के लिए मुल्क की सतह पर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर तबके को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। अनंतनाग के तजबारा अचबल में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद पीर मंसूर ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के पास हर मसले का रोड मैप है। इस मौके पर पीर मंसूर ने कारकुनों को हिदायत दी कि वो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को ज़मीनी सतह पर मुस्तहकम बनाएं। 130 करोड़ लोगों के साथ जुड़ के एंगेज करना है। हमने अपोजिशन से, कांग्रेस के साथ एंगेज करना है, हमें अखिलेश यादव के साथ, हमें ममता बनर्जी के साथ, हमने हर एक कम्युनिस्टों के साथ एंगेज करना है और ये चीज़ें वापस लानी है जो हमसे छीनी गई। देखिए 370 इस वक्त कहाँ है, या तो पार्लियामेंट दे सकती है या तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इन जो ये बुलंदबाग दावे करते हैं इनकी रिट नहीं है, पीसी की रिट है। वहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने वहाँ रिट दायर की है, वहाँ हम लड़ रहे हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट वापस दे, अगर नहीं तो आपको एंगेज करना है। आप आंखें दिखा के ये चीजें वापस नहीं ला सकते। पीर मंसूर हुसैन का कहना है कि पीडीपी के बिखरने के कई वजूहात हैं और इन वजूहात का वक्त पर सद्देबाब नहीं किया गया। बिखरने के अपने वजूहात हैं। क्यों बिखरे मुफ्ती साहब के रहलत के बाद, मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद क्यों बिखरे, ये तो सवाल निशान है। क्यों 14 कैबिनेट मिनिस्टर में से 11 भागे, क्यों 28 मेंबरों में से 21 भागे, एमएलए थे 28, मतलब क्यों, क्या वजह, कोई नहीं ना। ये तो उनके लिए एक सवाल है, मेरे लिए तो नहीं है, मैंने तो छोड़ी है। टंगमर्ग के बाबा-ऋषि की मार्केट में आग की हौलनाक वारदात में 28 दुकानें राख के ढेर में तब्दील हो गईं। काफी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। लोग अब इमदाद के तलबगार हैं। पेश है बाबा-ऋषि टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की ये रिपोर्ट। कल तक यहाँ दुकानें खड़ी थी। सैकड़ों लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, रोजगार कमा रहे थे। लेकिन आज यहाँ नजर आ रहा है तो सिर्फ राख का ढेर। इन खौफनाक आग के शोलों ने कई लोगों को उनके रोजगार से ही महरूम कर दिया। जी हाँ, शुमाली कश्मीर के टनमर्ग में कायम ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की मार्केट में आग की हौलनाक वारदात में 28 दुकानें राख के ढेर में तब्दील हो गईं। करोड़ों रुपए मालियत का यहाँ नुकसान हुआ। कई लोग रोजगार से महरूम हो गए और अब ये लोग बेबस नजर आ रहे हैं। हम तो आज बेकार हुए हैं 100 फैमिली करीबन। लिहाजा हम इस्तदा गवर्नमेंट से करते हैं कि इस वक्त हमें कहीं जगह दे, हमें कंक्रीट दुकान दे, और खासकर हम वक्फ बोर्ड से अर्ज करते हैं कि हमें जगह दिखाओ, हमें दिखाओ यहाँ पर कहाँ जगह है जहाँ पर हम रिहैबिलिटेट हो जाएंगे, टेंटमेंट लगाएंगे, कुछ अपना रोजगार कमाएंगे। माल है वो सारा खत्म हो गया। कम से कम ये तो घर अगर हिसाब करेंगे 100 घर हो जाएंगे, अगर 10-10 के हिसाब से लगाएंगे तो 1000 लोग बेकार हो गए। नुकसान की बात अगर हम करें तो हर एक दुकानदार तकरीबन शॉप इस वक्त जो पीक सीजन हमारा आने वाला है तो ऐसा है कि करीबन 2.5 लाख का नुकसान कम से कम हुआ है पर दुकानदार। ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की मार्केट में रात के 12 बजे अचानक एक दुकान से आग नमूदार हुई और आग ने फौरी आसपास की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के दौरान कई दुकानों में मौजूद गैस सिलेंडरों के फटने से धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। अगरचे फायर सर्विसेज अमला, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोग आग बुझाने के लिए जाए वारदात पर पहुंच गए थे, लेकिन फौरी तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वाक़े में मशहूर ज़ियारतगाह महफूज है। लोग बाबा ऋषि में फायर सर्विस गाड़ियों को दस्तयाब रखने और उनके लिए जगह मुतय्यन करने का मुतालबा कर रहे हैं। तो अतुतान 9 किलोमीटर 1.5 मिनट तुम गई 9 गई अर्धा मिनट तो वो बराबर टाइमस पे 8 बजे वत तौर बराबर वत टाइमस पे तक नार सलम खतरनाक नार वुडन स्ट्रक्चर
38 दुकान 28 टोटल इन्वॉल्व तो 3 बचे बर वक्त कार्रवाई से बचे 3 नार हज यूत गैस मच जबरदस्त 10 गैस मच तुम फचक बाहर तत गोडनेथ ग तो पत कोर नार याद वुच बुलाए बाकी। ज़ियारत बाबा रेशी में हर रोज हजारों की तादाद में अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। साथ ही यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ ये दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन इस आग की हौलनाक वारदात के बाद अब ये दुकानदार अपनी रोजी रोटी से ही महरूम हो गए हैं। अब ये मुतासरीन सरकार से फौरी मुआवजा फराहम करने की अपील कर रहे हैं। मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए फौरी इक़दामात उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बाबा रेशी टनमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने बाबा रेशी में आग से हुए नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन से भी तबादला ख्याल किया। बाबा रेशी के लोगों ने मीर को अपने मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। गुलाम हसन मीर के हमरा कुंजर डीडीसी मेंबर नज़ीर अहमद और टंगमर्ग के डीडीसी मेंबर मीर तजम्मुल अशफाक भी थे। गुलाम हसन मीर ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरीन की बाज़ाबातकारी और उनके रोजगार को दोबारा बहाल करने के लिए इक़दामात उठाए जाएं। कारोबार तो अब उम्मीद बन गई थी इनकी कि सीज़न शुरू होने वाला है तो वो भी कुछ कमाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, लेकिन बदकिस्मती से आग से एक तो इनकी दुकानें खत्म हो गई, दूसरा इनका रोज़गार भी छिन गया। चूँकि ये दुकानें औकाफ की थी, औकाफ कब दुकानें बनाए क्या बनाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि वो फौरी तौर इनको कुछ ऐसा टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करें जिससे इनका कारोबार चल सके। तलबाग पामपुर में बीती रात 250 केवी बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में ट्रांसफार्मर पूरी तरह तबाह हो गया। ताहम फायर सर्विस अमले ने आग को मजीद फैलने से रोककर एक बड़े हादसे को टाला। ट्रांसफार्मर के जलने से इलाके में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। लोगों ने यहाँ नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने की महकमे से अपील की। 10-20 मिनट में ये पूरा ख़त्म हुआ, ट्रांसफार्मर भी ख़त्म हुआ और यहाँ जो वायरिंग थी इसकी ये भी ख़त्म हो गई। इसमें ऊपर से जा रहा है 1,32,000। अगर वो कंडक्टर स्नैप हो जाता तो यहाँ कुछ नहीं रहता। हमारी गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर साहब से, AEE साहब से, कंसर्न JE साहब से, यहाँ तो एक नया ट्रांसफार्मर दीजिए, दूसरा कि इसको वो RCC बेस बनाइए कंक्रीट, दूसरा कि इसको स्टील स्ट्रक्चर पोल्स लाइए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। न्यूज़ 18 उर्दू अपनी गैर जानिबदारी, सच्चाई पर साबित कदमी, ज़बान व अदब और तहजीब व सकाफ़त के अलमबरदार के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। यही वजह है कि न्यूज़ 18 उर्दू आम खास के दिलों में अपना अलग मकाम रखता है। इस एजाज़ को मज़ीद पुख्ता किया ENBA ने। ENBA ने न्यूज़ 18 उर्दू को सबसे भरोसामंद और नंबर 1 उर्दू चैनल का खिताब दिया। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। ख्वातीनो हजरात, आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू। उर्दू के लाखों नाजरीन की पहली पसंद न्यूज 18 उर्दू मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। मोहिबान उर्दू ने हमेशा न्यूज 18 उर्दू को अपने प्यार और मोहब्बत से नवाजा है। यही वजह है कि हर नए दिन न्यूज 18 उर्दू के नाजरीन में इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह उर्दू की शीरीनी को हमने बरकरार रखा, वो अपने आप में एक मिसाल है। न्यूज 18 उर्दू ने उर्दू जबान से मुतल्लिक कभी समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा है कि न्यूज 18 उर्दू पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम और खबरें मोहिबान उर्दू की पहली पसंद बने हुए हैं। आज के बदलते दौर में भी हमने उर्दू की विरासत को संजोए रखने का काम किया है। इसी का नतीजा है कि आज मुल्क भर में न्यूज 18 उर्दू की पजीराई हो रही है। न्यूज 18 उर्दू का लोहा ENBA ने भी तस्लीम किया।
PNBA ने उर्दू की शीरीनी और गैर जानिबदाराना सहाफत को एजाज से नवाजा। जी हाँ नाजरीन, आपके न्यूज 18 उर्दू को उर्दू जबान के चैनल ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। Congratulations, and now for the winner in the category, it goes to News 18 Urdu, the news channel of the year Urdu. The winner is News 18 Urdu. Congratulations to our winners. यही नहीं, न्यूज 18 उर्दू के मशहूर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया को बेस्ट एंटरटेनमेंट कवरेज के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड और न्यूज 18 उर्दू के प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। ब्रॉन्ज अवार्ड गोज टू न्यूज 18 उर्दू। Congratulations, News 18 Urdu for दिल ने फिर याद किया। And the silver award goes to News 18 Urdu. Congratulations, News 18 Urdu for ground report. नाजरीन, हमारी ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, उर्दू के चाहने वालों की कामयाबी है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। ख्वातीन और हजरात, आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी सर, हमारे CEO अविनाश कौल साहब, संतोष मेनन जी, और हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना साहब, जो हर पल हर लम्हे हमारे साथ रहे। हमारी टीम उर्दू, पूरी टीम उर्दू, RFC नोएडा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सब जगह के जो हमारे टीम उर्दू के लोग हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूं। और मुबशिर भाई, ये खास अवार्ड जो है ये आपके लिए है, मैं RFC हैदराबाद इसको भेज रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। न्यूज 18 उर्दू को न्यूज चैनल ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर समाज के मुख्तलिफ तबकों की जानिब से न्यूज 18 को मुबारकबाद पेश की गई है। मैं न्यूज 18 उर्दू की सभी टीम को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं। जिस तरह से बेहतरीन कवरेज के लिए उनको अवार्ड मिला है, जिस तरह गरीबों की आवाज़ जो है हुकूमत वक्त तक पहुंचाते हैं आप लोग, और पूरी टीम जो है इससे बड़े एजाज़ की मुस्तहिक हैं। और अल्लाह मियाँ से दुआ है कि वो आप सभी को, पूरी टीम को आने वाले वक्त में इससे भी बड़े एजाज़ात से नवाजे। न्यूज़ 18 उर्दू को बेहतरीन चैनल और बेस्ट चैनल ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है, तो इन लोगों के जो काम है, जो इन लोगों की रिपोर्टिंग है, मैं ये बताना जरूरी और मुनासिब समझता हूँ इस वक्त कि जो न्यूज़ 18 उर्दू की रिपोर्टिंग होती है, जो मजलूमों और बेसहारों और इलाका की हर खबर से हमें रूबरू कराते रहते हैं, हम आज रिलाई करते हैं इस चैनल के ऊपर, इनकी न्यूज रिपोर्टिंग्स के ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है कि सदाकत से दो चार करेंगे हमें ये, और वही काम करते हैं। तो काबिल सताइश काम है न्यूज 18 उर्दू का। बहुत मुबारक मेरी तरफ से, और यहाँ इलाका खित्ता चिनाब की तरफ से, भद्रवा की तरफ से, जिला डोडा की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आउटस्टैंडिंग काम को रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और जो आज न्यूज़ 18 उर्दू को एजाज से नवाजा गया है, बड़ा वेल डिजर्विंग अवार्ड है ये, क्योंकि चिनाब रीजन के लिए इन जनरल और भद्रवा के लिए इन पर्टिकुलर जो पॉलिटिशियन नहीं कर पाए, यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं कर पाई, वो काम जो है न्यूज़ 18 ने करके दिखाया है। उसने यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं दुनिया के सामने लाया, बल्कि यहाँ के कल्चर को, यहाँ की हिस्ट्री को और यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल को लाया है। और अगर आज की डेट में भद्रवा को जो पूरा वर्ल्ड फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी है, तो उसमें न्यूज़ 18 उर्दू का बहुत बड़ा हाथ है, वो बहुत ही सराहनीय बात है। तो इस सब के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने न्यूज़ 18 को ऑर्गेनाइज करके उसको एक बेस्ट चैनल का अवार्ड। न्यूज़ 18 उर्दू की तमाम इंतज़ामिया और उनकी तमाम टीम को मेरी पार्टी की तरफ से और ख़ुसूसी तौर पे आम लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये जो उन्हें एजाज़ से नवाजा गया है, इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। न्यूज़ 18
यकीनन तौर पे ज़मीनी सतह पर काम कर रही है, आम लोगों की, गरीबों की, मिस्किनों की आवाज़ में आवाज़ मिला के उस आवाज़ में इतनी ताकत भर रही है कि वो आवाज़ आवाम तक पहुँच के और वो आवाज़ अपना काम कर रही है। न्यूज़ 18 को 2020 का एनबा अवार्ड जो मिला है, इस पे मैं पूरी टीम को, न्यूज़ 18 को मुबारकबादी पेश करता हूँ। हर एरिया के लोगों की आवाज़ जो है, जो उनके मसाइल हैं, वो सरकार तक पहुँचाए। जितने भी साथी थे उन्होंने अच्छा काम किया, मैं भी अपनी तरफ से इनको मुबारकबादी देता हूँ। ट्यूलिप फेस्टिवल के दूसरे दिन मकामी लोगों के साथ सियाहों ने भी ट्यूलिप गार्डन का रुख किया। कश्मीरी और हिंदी में लाइव म्यूजिक कंसर्ट का यहाँ एहतमाम किया गया था। फनकारों ने अपने परफॉर्मेंस से हाजरीन को खूब लुत्फ अंदोज किया। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ ने इस मौके पर बताया कि गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल कई सयाह कश्मीर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में रोज़ाना 48 फ़्लाइट्स सयाहों को लेकर आ रही हैं। सरमद हफीज़ ने ट्यूलिप सीज़न को सयाहत के लिए मुनासिब वक्त करार दिया। An invitation to people all over the country and all over the world. बैंगलोर से फ्लाइट स्टार्ट हुई है, जयपुर से फ्लाइट जो है डायरेक्ट आ रही है, इसी तरह हमारी कलकत्ता से फ्लाइट शुरू होने वाली है। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर पीपल टू कम एंड एंजॉय, नॉट जस्ट इन स्प्रिंग बट ऑल्सो इन समर एंड ऑटम एंड विंटर। एक विगरस कैंपेन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर के बाहर मुल्क की बाकी जगहों पे हो। तो बुनियादी मकसद है कि यहाँ का एक जो है एनवायरनमेंट लोगों को बताना और यहाँ क्या टूरिज्म के हवाले से हमने तैयारी करी है, इस चीज़ को बाहर शोकेस करना है। ये जो फेस्टिवल्स वगैरह हम देख रहे हैं, आज यहाँ गुलेलाला में आप देख रहे हैं, ये एक हमारी पहल है डिपार्टमेंट की कि हम टूरिस्ट को जहाँ नेचुरल ब्यूटी के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, वही हम उनको बाकी एक्सपीरियंस भी दिखाए, चाहे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हों, यहाँ का क्रेज़्यून हो, या यहाँ के जो है कल्चर सकाफती जो हमारे चीजें हैं, तो उनको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर स्टेट में होना चाहिए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द गवर्नमेंट्स टू हैव द सेम डेकोरम एंड सेम टाइप ऑफ गार्डन सो एज टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। गार्डन बहुत सुंदर है, मैं पहली बार कश्मीर आई हूँ और मुझे इतना सुंदर लग रहा है। ये इंडियन आर्मी ने सबने बहुत अच्छे से ये मैनेज किया हुआ है। बहुत अच्छा लगा हमें। हम टोटल 50 लोग के टीम आए हैं, हम सब घूम रहे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। फ्लावर तो देखकर आग भर जा रहा है। मैं सबको बोलूंगी आओ आके कश्मीर का जो ब्यूटीफुल है ये वो देखो। मजा है, देख रहा है, खूब सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वुमीद रंगमंच ने जम्मू के अभिनव थिएटर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर राकेश रोशन भट्ट की कश्मीरी ड्रामों पर मबनी किताब का रस्म इजरा किया गया। इस दौरान कोविड के दौरान खदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड पाने वालों में रविंदर कौल, अयाश आरिफ, रूमी शर्मा शामिल हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट समीर भट्ट को भी सहाफ़ी के ज़ुमरे में अवार्ड से नवाजा गया। मेरा मकसद ये था बुक लिखने का कि कश्मीरी प्ले राइटिंग का जो इतिहास है और जो लेगेसी है हमारी कश्मीर में, जो थिएटर की लेगेसी है, उस कड़ी का मैं भी एक हिस्सा बन रहा हूँ। अभी मैं बहुत छोटे पायदान पे हूँ, शुरुआती दौर में हूँ, बट आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है जिसका ज़रिया मैं हूँ और मेरे जैसे जो और भी कश्मीरी में नाटक लिखते हैं, क्योंकि हम उस लेगेसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िला पुलवामा के ओको गांव में कायम फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से मकामी आबादी को आलूदा पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। ओको गांव की वाटर सप्लाई स्कीम हुकूमत ने साल 2006 में तामीर की थी, लेकिन स्कीम का फिल्ट्रेशन प्लांट साल 2014 के सैलाब में नाकारा हो गया था। उसके बाद महकमे जल शक्ति की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से गुज़श्ता कई बरसों से ओखो गांव को दरिया जहलम का पानी बगैर फिल्टर फराहम किया जा रहा है, जिससे इलाके में वबाई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहक रहता है। जल शक्ति महकमे सिविल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को कायम करना मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम है। मुकुर आब चवान, गंद आब चवान, यह गसन साफ पहम जान लुटर वुचमुत अपील करान गोस फिल्टर आब
बहुत गंदा पानी है। आप देखिए सर, इस टाइम डीसी साहब ने हमको सामान दिया है इसका फिल्टर करने दवाई लगाने का, लेकिन सर हम इसको टेस्ट करेंगे तो 10वीं टेस्ट खराब निकलेंगे। हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और स्कॉट्स के साइंसदानों ने करगिल में अपना मिशन शुरू कर दिया है। कार्लिंग मात नामी वाटर वायरस खत्म करने का मिशन शुरू किया गया है। इसका आगाज एग्जीक्यूटिव काउंसलर सईद आगा ने किया। वायरस से मेवजात की फसलें लगाने वालों को लाखों रुपए नुकसान उठाना पड़ता है। सेब और खुबानी की फसलें इस वबा से मुतासर होती हैं। करगिल के मशहूर साइंसदान डॉक्टर गुलाम मेहदी, डॉक्टर फैजान अहमद, हार्टिकल्चर अफसर गुलाम रजा मैदान में उतरे हैं। म्यूनसिपल कमेटी मागाम की अदम तवज्जो की वजह से जगह जगह गंदगी के अंबार जमा हो गए हैं और बदबू से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अंदेशा लाहक हो गया है। मागाम बाजार में आलूदगी ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। न्यूज़ 18 उर्दू ने पहले भी इस मामले को लेकर खबर नशर की थी। खबर नशर होने के बाद अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के डिप्टी डायरेक्टर ने मागाम म्यूनसिपल कमेटी का दौरा किया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि डिप्टी डायरेक्टर ने महकमा और म्यूनसिपल कमेटी मागाम की खामियों को छुपाने की गर्ज से अपने दौरे की मीडिया कवरेज नहीं होने दी। इतना ही नहीं, उन्होंने मागाम में जमा गंदगी से पैदा सूरत हाल से मुताल्लिक सवालात के जवाब देने के लिए कैमरा के सामने आने से भी गुरेज किया। वाज़ेह है कि मागाम में डंपिंग साइट का मसला अरसे दराज से तूल पकड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मागाम में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं। लोगों ने महकमे से अपील की कि मागाम में जमा शुदा कूड़ा करकट फौरी ठिकाने लगाया जाए। डंपिंग का और यहाँ पर जो गार्बेज मार्केट में जमा हुआ है उसके बारे में उनके साथ मीटिंग हुई है, जिसपे उसने फाइनली एक्सेप्ट किया है कि म्यूनसिपलिटी मागाम नाअहल है, उनके ऑफिसर्स नाअहल है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं कर पा रहे, आपस में इनका अनबन चालू है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और फाइनली उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि बिफोर 8th यहाँ पर जो भी आपके इश्यूज है रिगार्डिंग डंपिंग साइड या गार्बेज मागाम की सैनिटाइजिंग, डेली सैनिटाइजिंग का, वो भरपूर आपका क्लियर हो जाएगा। यही डिमांड रखी कि हमारा जो मसला है गार्बेज का, वो उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, लेकिन इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है और ये वही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, और यही इल्ज़ाम तराशी यहाँ पे हम पिछले 1 साल से सुनते आ। बडगाम के धारमू में मागाम से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साला ड्राइवर अली मोहम्मद की लाश इनोवा गाड़ी में मिली। अली मोहम्मद की लाश जो ही आबाई घर मालमू पहुंचाई गई तो यहाँ सफ़े मातम बिछ गई। मकामी लोगों ने एहतजाजी जुलूस की सूरत में लाश मागाम पहुंचाई, जहां लोगों ने कत्ल में मुलविस अफराद की निशानदेही करने का मुतालबा किया। तहसीलदार मागाम और SDPO मागाम ने लोगों को यकीन दिलाया कि इस मामले की तहकीकात बहुत जल्द पूरी की जाएगी। दारमू में हुए इस वाक़े की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है, जिससे लग रहा है कि अली मोहम्मद को कत्ल किया गया है। अली मोहम्मद पेशे से ड्राइवर थे, वो इनोवा गाड़ी ही चलाते थे जिसमें उनकी लाश मिली। उधर पुलिस ने लाश को पहले अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि मुलविस अफराद को जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जो फुटेज हमने देखी, जो वहाँ पे आ गई है सामने सोशल मीडिया के जरिए, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये कत्ल है। तो इस ज़िम्न में हम आपकी वसातत से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा करते हैं कि इसका तहकीकात जल्द अज जल्द किया जाए, ताकि आगे जो ये ऐसे वारदात होते रहते हैं कि इन पे काबू लिया जाए। मोर मजलूम बिचार अमिस मतलब इंसाफ मुलजिम गए पेश। मेरा एक भाई जो मेरा बहुत ज़्यादा करीब था, उसकी डेथ हुई है, उसका मर्डर हुआ है, और साथ साथ मैंने CCTV फुटेज भी देखी। इससे साफ क्लियर हो रहा है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, और हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस मसले को ना वो गहराई से ले और फिर इसकी पूरी तहकीकात करे, और जो भी इसमें मुलविस है, जो भी मुजरिम है, सज़ा दी जाए जो भी कानून के मुताबिक हो। पुंछ पुलिस ने गांव खाना तेर में पुलस्त नदी से एक नौजवान की लाश बरामद की। 6 दिनों बाद लाश बरामद करने में कामयाबी हासिल हुई है। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम किया गया।
قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد آخری رسومات کے لیے لاش اہل خانہ کے سپرد کر دی گئی۔ متوفی کی شناخت ضلع پونچھ کے گاؤں سیری چوانا کے رہنے والے 25 سالہ محمد رفیق کے طور پر ہوئی ہے۔ پونچھ اور راجوری اضلاع کو کشمیر سے جوڑنے والی مغل روڈ پر برف ہٹانے کے کام پورے کر لیے گئے ہیں۔ پی ڈبلیو ڈی میکینیکل ونگ کی جانب سے روڈ پر سے برف کی صفائی کے کام انجام دیے گئے۔ ضلع کے لوگوں نے ایل جی سے مانگ کی ہے کہ وہ مغل روڈ کو فوری کھول دیں۔ جموں کشمیر میں بی جے پی صدر رویندر رینا نے این سی پی ڈی پی اور کانگریس پر الزامات کی بوچھار کر دی۔ انہوں نے کہا کہ تینوں پارٹیوں نے اپنے دور حکومت میں عوام کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا، لیکن بی جے پی سب کو یکساں حقوق دے رہی ہے۔ رویندر رینا راجوری میں بی جے پی کے دفتر میں ورکرز کے ایک روزہ کنونشن سے مخاطب تھے۔ کپواڑہ ضلع کے کرالپورہ علاقے میں آیوش سینٹر کو عوام کے نام وقف کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے محکمے کے افسران کے ہمراہ آیوش سینٹر کا افتتاح کیا۔ دور دراز علاقے کے مریضوں کو اس سینٹر کے قیام سے کافی راحت ملی ہے۔ دارالعلوم غوثیہ للبنات ترال کا سالانہ جلسہ آج منعقد ہوا۔ اس موقع پر علماء اکرام نے اسلام کے آفاقی پیغام پر مفصل روشنی ڈالی اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اس دوران قرآن پاک حفظ کرنے والی دارالعلوم کی 5 لڑکیوں کی دستار بندی کی گئی۔ منشیات کے فروغ سے وادی کشمیر میں صورتحال سنگین بن رہی ہے۔ سرحد پار سے اس کاروبار کا الزام لگ رہا ہے، مرکزی سرکار کو اس پر روک لگانی چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار مفتی اعظم ناصر الاسلام جموں کشمیر نے تابندہ میموریل کی جانب سے ٹاؤن ہال ہندوارہ میں معروف اسکالر اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر مرحوم منظور احمد کرمانی کی یاد میں منعقدہ تقریب کے موقع پر کیا۔ تقریب میں مرحوم کی سماجی خدمات کو سراہا گیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر یتیم و ضرورت مند طلباء و طالبات میں یونیفارم اور کتابیں تقسیم کی گئی۔ بانڈی پورہ کے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں آج کافی اینڈ کلام نامی ادبی تنظیم کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ بانڈی پورہ وٹاپورہ کے نوجوان اسکالر مرحوم ڈاکٹر جمشید جمیل کی یاد میں منعقد کی گئی اس تقریب کے دوران مرحوم اسکالر کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران ایک محفل مشاعرہ بھی منعقد کیا گیا۔ جموں کشمیر کے ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمار نے شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اننت ناگ میں بازار ایف سی آئی گوڈاؤن میں قائم ہونے والا یاترا ٹرانزٹ کیمپ اور والنٹ فیکٹری قاضی گنڈ کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے اور ڈی سی اننت ناگ ڈاکٹر پیوش سنگلا بھی موجود تھے۔ وقت ایک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ ترال کا دور دراز علاقہ کھاسڑی گجر بستی کارملا کے لوگ پینے کے پانی اور رابطہ سڑک سے محروم ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے تک کارملا سے رابطہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں 5 کلومیٹر تک پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ علاقے میں ابھی بھی پینے کے پانی کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ محکمہ جل شکتی نے علاقے میں ایک واٹر سپلائی اسکیم بنائی تھی، لیکن ابھی تک اس کو استعمال میں نہیں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے وقت ہر سیاسی پارٹی کے لیڈران انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، مگر بعد میں کوئی ان کی خبر نہیں لیتا۔ انہوں نے انتظامیہ سے علاقے کی طرف توجہ دینے کی مانگ کی۔ بس پانی کا مسئلہ ہے جناب ہمیں، کیونکہ پانی ہے ہی نہیں، ہمارے گاؤں میں پانی ہے ہی نہیں، بہت پرابلم ہے پانی کا۔ گندم نالوں میں کھانا لے جانا پڑتا ہے، کسی وقت ہم برف ہوتی ہے برف پگھلا کا کھانا پانی پیتے ہیں، کیونکہ پانی بالکل کم ہو جاتا ہوتا بھی نہیں ہے۔ سڑک نہیں ہے، ہم کو بیمار پڑ جاتا ہے، 4 پائی ہم کو نچل جانا پڑتا ہے، وقت پر گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، مصیبت کے لیے مصیبت میں پھنسا ہوا ہے ہم۔ یہاں جس وقت میں ووٹ مانگتا تھا ہم ووٹ بھی ڈالتے ہیں، یہاں پیچھے بعد میں کوئی نہیں آتا۔ 2017 میں یہاں پہ ایک ٹینکی بنائی گئی اوپر کھاشری لاسٹ پہ، تو ابھی تک اس کا کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ کہیں پائپیں بچھائی ہے نہ کچھ ہے۔ ابھی جب بھی جو بھی وہ پانی معمولی سا تھوڑا پیچھے سے انہوں نے لگایا تھا تو وہ پانی نکل کے لوگوں کی زمین میں جاتا ہے۔ وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔